terminologies that are usually also used. Then, sorry, there are few other terminologies which are used commonly. That is, one is the most common one is the bacteriuria. Bacteriuria, as the name indicates, what is bacteriuria? It is the presence of bacteria in the urine. But do you think it is indicating any kind of infection? It is not necessarily indicating. Okay, so bacteriuria could be without infection, it could be with infection. ठीक है, so when we someone says के bacteriuria, तो उसका मतलब क्या है कि बैक्टीरिया है तो यूरिन में प्रेजेंट, इसका मतलब है कि उन्होंने जरूर यूरिन माइक्रोस्कोपी या कोई यूरिन डिटेल रिपोर्ट से फाइंड आउट किया है, लेकिन इट माइट बी not be responsible for infection. Okay, so bacteriuria could be divided into symptomatic bacteriuria and asymptomatic bacteriuria. Okay, so symptomatic bacteriuria क्या हो गया? It means के some kind of urinary tract infection is there. Okay, and asymptomatic bacteriuria, because why I'm telling you here, because asymptomatic bacteriuria is very common condition. ठीक है, and especially you in a GP practice, in a hospital setting, we come across many times कि हम पेशेंट की यूरिन में देखते हैं कि बैक्टीरिया तो आ रहे हैं लेकिन उसके कोई और फाइंडिंग्स नहीं है. ठीक है, सो व्हाट इज एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया? प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द यूरिनरी ट्रैक्ट इन द एब्सेंस ऑफ सिम्टम्स, and its clinical significance of asymptomatic bacteria is quite like controversial. It should be treated only in case of pregnancy, in case of any patient who is undergoing invasive procedure of urinary tract, or if patient is suffering from any kind of transplantation or some other procedures. Okay, so otherwise asymptomatic bacteria should not be. That is used commonly is the pyuria. Pyuria का मतलब क्या है? Presence of pus cells in the urine. Okay, sometimes you see the urine DR report and you will find कि pus cells है. But does it mean always that there is infection? It might be possible कि there is infection, or it might not be possible sometime कि आपके उसकी वजह से infection वो represent कर रहा है infection को. Okay, क्योंकि another terminology is used as sterile pyuria. What is sterile pyuria? इसमें आपके pus cells तो यूरिन में है बट कल्चर जो है वो आपका नेगेटिव आ रहा है, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं आ रही है. एंड सो व्हाट आर द रीजंस फॉर इट? आइदर सबसे कॉमन कॉज ऑफ स्टेराइल पायूरिया क्या है कि या तो पेशेंट ने एंटीबायोटिक थेरेपी ले ली है. ठीक है, अगर एंटीबायोटिक थेरेपी ले ली तो हो सकता है कि बैक्टीरिया ग्रो ना हो लेकिन पस सेल्स फिर भी नजर आ रहे हैं आपको. दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है. बट देन देयर आर अदर रीजंस ऑफ स्टेराइल पायूरिया ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वजाइनल इन्फेक्शन है, कोई सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है लाइक क्लेमाइडिया ट्रिकोमैटिस, सिमिलरली some other infections like mycobacterium tuberculosis की वजह से यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, यूरिन ट्यूमर की वजह से, या स्टोन्स हैं आपके नेफ्रोलिथियासिस जिसको कहते हैं, देन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. सो दीज आर द कंडीशन जिसमें पस सेल्स होंगे, लेकिन दीज आर बिकॉज ऑफ सम अदर inflammatory reasons. It's not because of infection. So that would be labeled as sterile pyuria. Okay, so these are few terminologies जो के यूज होती है. So let's talk about natural defense mechanism of urinary tract. We all know that we have very strong urinary tract defense mechanism. And what are those urinary defense mechanism? कि जाहिर सी बात है कि इतना जो है वो frequent जो है वो exposure urinary tract का हर वक्त जो है वो outside environment से होता रहता है. So obviously, so there is some kind of a strong mechanism, not just in the male but also in the female as well. So what are those host defense mechanisms? सबसे पहले तो है कि sphincters are very important. ठीक है, यूरिथ्रल स्फिंक्टर, वजाइको यूरिटरी जंक्शन पे जो स्फिंक्टर है बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करता है. ठीक है, सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. देन फ्लशिंग एक्शन ऑफ मैच्योरेशन, फ्रीक्वेंट जो फ्लशिंग होती है तो उसकी वजह से जो भी बैक्टीरिया थोड़े बहुत जो है वो असेंडिंग एक्सेस कर रहे होते हैं वो फ्लश आउट होते रहते हैं.
then mucus release from that sites. Then urinary pH is very acidic itself it is creating a hostile environment. एसिडिक पीएच की वजह से बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते हैं. देन यूरिनरी ट्रैक से आईजीए एंटीबॉडी रिलीज होती है. ओके, देन सम अगर इन्फेक्शन बैक्टीरिया पेनिट्रेट कर भी जाते हैं तो देयर इज स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज द इन द मेल you can see the size of the urethra is quite long. ओके, सो उसकी वजह से मेल को थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल जाती है. फीमेल में वाई इट इज मोर कॉमन बिकॉज शॉर्ट यूरिथ्रा और उसकी वजह से मैकेनिकल ट्रॉमा और उसकी वजह से भी डिस्पोजिशन फीमेल में ज़्यादा होती है. मेल में इजैकुलेशन की वजह का भी इट्स अगेन काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट reflux mechanism and prostatic secretions also contain antibacterial factors. ठीक है. टॉम्स हॉर्सफॉल प्रोटीन जो है वो उसका अभी तक इतना रोल जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, बट इट इज सेड दैट इट इज ऑल्सो हैज some kind of protective role. Let's talk about normal flora of the male and female urethra. So you should know that what are the normal flora of male and female urethra. Just like other part of the body area orifices जो है वो इसमें भी एक गार्डनिंग की एक यहाँ पर एज ए गार्ड they are working, and they are consist mainly of gram positive organisms like staph epidermidis है या streptococcus species है, then corynebacterium species other than corynebacterium diphtheria, then few gram negative bacteria might be there, but most of the time जो है वो these are gram positive bacteria. But remember that above the urethra of male and female, so all other part of the male and female urogenital tracts are sterile. ठीक है. इससे ऊपर अगर कोई भी बैक्टीरिया जाएगा तो it means कि it is causing colonization or infection. ठीक है. normal flora नहीं है वो. Okay, let's talk about pathogenesis. Most of the time you all know that ascending infection is the most common route. ठीक है ना. एंड यूजुअली जो है व्हाट हैपेंस कि द organism that cause UTI are mostly they belong to patient's own intestinal flora. ठीक है. तो इंटेस्टिनल फ्लोरा या वजाइनल फ्लोरा जो होता है उसमें जो ग्राम नेगेटिव रॉड्स होते हैं स्पेशली जो है एंटेरोबैक्टीरिया सी ई कोलाई वगैरह जो होते हैं फीमेल के दे रिसाइड ओवर देयर एंड देन दे stick to urethral sites, and then when they find any chance they cause ascending sort of infection. ठीक है. इसलिए इस तरह से retrograde sort of जो है वो ascending infection जो है वो इनका होता है. and but sometimes जो है hematogenic spread can also takes place, and mostly जो है वो इनको जो है वो देखा गया है कि किसी किस्म का बैक्टीरिया हुआ है, लाइक persistent बैक्टीरिया लाइक एंडोकार्डाइटिस है या कोई और डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन है. तो उसमें खास तौर पर दोज ऑर्गेनिज्म लाइक स्टेफिलोकोकस ऑरियस दैट इज द इट हैज लाइक वेरी गुड कैपेबिलिटी टू लॉज एट एनी साइड. Similarly through the blood it also reaches to the kidney, and directly it can cause hematogenous pyelonephritis. ठीक है. तो स्टेफ ऑरियस वगैरह का जब भी कभी इन्फेक्शन हो तो ऑलवेज थिंक अबाउट कि कहीं कोई हेमेटोजेनस स्प्रेड तो नहीं है इसका. यू हैव टू फाइंड आउट अदर सोर्सेज ऑल्सो. ओके, देन व्हाट आर द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स of UTI? So we all know that the age, sex, hygiene, habits, जो पर्सनल जो है हाइजीन जो है वो उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है. देन प्रेगनेंसी ऑब्वियसली इट हैज सम anatomical and physiological alteration. That is why it is also considered as a predisposing factor of urinary tract infection. Then use of antibiotics. Use of antibiotics से क्या होगा? Whenever you take some antibiotic, obviously resistant organism जो है वो आपके proliferate होते हैं, and then they get chance to cause infection to the neighboring organs. Obstruction of any sort of obstruction. हमने पहले भी बात की थी कि ऑब्स्ट्रक्शन एनाटॉमिकल वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन और एनाटॉमिकल डिफेक्ट की वजह से हो सकती है, या कोई फॉरेन बॉडी हो सकती है प्लेसमेंट लाइक डिजेस्टेंट हो गया या एंडोलिंग
कैथेटर हो गया या कोई आपने कोई और ट्यूब डाल दी है. So all of these can lead to stasis, and whenever there is a stasis, so there is a chance of lodging of bacteria over there, and then there is a proliferation and inflammation over there. Then हमने जो बात की है अभी कि एज ग्रुप एल्डरली में भी जो है वो it is very common, and we all know that the incontinence is the most important problem in the male patients. elderly patient जो है वो prostate की जो है वो benign prostatic hyperplasia की वजह से जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, न्यूरोलॉजिकल ऑल्ट्रेशन हो सकती है दोनों जेंडर्स में, फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो सकती है एल्डरली पेशेंट्स में. ओके, सो दीज आर द कॉमन प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर्स. Some factors are also related with the host that we talked about, okay, and now some factors are related with the organisms also. ठीक है, कुछ organisms जो हैं वो आप लोगों ने देखा होगा कि why some organisms cause urinary tract infection and not other organism. ठीक है, कुछ organism कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते. What is the reason behind it? Why? Because they have some important virulence factors related with that. For example, when we talk about E. coli is considered as one of the it is the most common cause of uncomplicated urinary tract infection. ठीक है, तो उसमें क्या है, what is special in that? Uropathogenic E. coli कहलाते हैं ये. Uropathogenic E. coli, they have special adhesives, they have fimbria, pili. Okay, you can see in this picture कि इसके जो है वो कितने सारे एडिसिन और पिलाए और ये सब जो है वो इसके निकले हुए हैं, एंड दे हैव स्पेशल रिसेप्टर्स एंड they so that they get attachment with the uroepithelial cells. ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द यूरिथ्रा, ब्लैडर, अबव एज वेल. ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है वो इनके जो है वो खास स्ट्रेन्स होते हैं जो कि उनको वहाँ पर जाकर अटैचमेंट की उनकी अंदर कैपेबिलिटी होती है, एंड देन ऑब्वियसली जब अटैचमेंट हो गई तो देन दे ऑर्गेनिज्म कैन रिलीज एंडोटॉक्सिन, लाइपोपॉलीसैकेराइड और सारी चीज़ें, और वो अपने रिलेंस फैक्टर से इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर देता है. ओके, so etiological agents we were talking about. So acute uncomplicated urinary tract infection as we डिस्कस के यंग फीमेल में है. ठीक है, असेंडिंग होता है, यूरिथ्राइटिस, सिस्टाइटिस. तो ई कोलाई की हमने बात की थी कि 80%, बल्कि मैं तो कहूँगी कि 90% जो है वो ग्रेटर देन 80% इट इज ई कोलाई. ओके, एंड देन रिमेनिंग जो है वो 5 to 15% में अदर ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो बी देयर. लाइक उसमें कौन कौन से हो सकते हैं? स्टेप्लोकोकस सेप्रोफिटिकस. स्टेप्लोकोकस सेप्रोफिटिकस इज अनदर कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफ्लोकोकाई जो कि स्टेफ्लोकोकस ऑरियस से डिफरेंट है. ठीक है, इसका नाम है स्टेफ्लोकोकस सेप्रोफिटिकस. ये भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर सकता है. देन क्लेप्सिला नमूनी, क्लेप्सिला स्पीशीज, एंटेरोकोकस species. Enterococcus is another gram-positive organism. Then Proteus mirabilis and other Proteus species. So these are rarely these organisms can cause, but not commonly. सबसे common आपका नाम जो है वो आएगा वो E. coli का. Then when we talk about complicated urinary tract infection, तो उसकी कहानी different है. ठीक है, उसमें mostly again I would say कि E. coli is the commonest. Complicated maybe, लेकिन depending upon scenarios to scenario, other organisms can also cause complicated urinary tract infection. ठीक है, for example जो है वो हम कैलकुलस रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसमें उसकी एपिडेमियोलॉजी बताती है कि कोलाई के साथ साथ प्रोटियस, क्लेप्सिला, एंटेरोबैक्टर, ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो जो है वो ये कर सकते हैं. देन अगर हिमेटोलॉजिकल स्प्रेड, मैंने अभी बात की थी कि स्टेफ ऑरियस आप सबसे पहले आपके जहन में आना चाहिए. हिमेटोलॉजिकल स्प्रेड से अगर पाइलोनेफ्राइटिस हुआ है तो आप स्टेफ ऑरियस का सबसे पहले नाम लेंगे आप. ठीक है, देन नोजोकोमियल एंड और कैथीटर रिलेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगेन जो है वो क्योंकि कैथीटर लगा हुआ है तो आप जो है वो कोलाई और दूसरे एंटेरोबैक्टेरिया के साथ साथ आप दूसरे ऑर्गेनिज्म, environmental organisms can also cause urinary tract infection, like Pseudomonas aeruginosa कर सकता है.
ठीक है, सिरेशिया भी कर सकता है, ठीक है, तो क्योंकि ये नोजोकोमियल की हम बात कर रहे हैं ना, ठीक है, इस वजह। किसी ने अपना माइक ऑन किया, आई थिंक, प्लीज ऑफ कर दे, म्यूट कर दे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट डायग्नोसिस ऑफ यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, जो हमारा मेन जो वो है, ठीक है जी। ओके, सो डायग्नोसिस ऑब्वियसली सिम्टम्स पहले देखे जाते हैं, हिस्ट्री ली जाती है, देन लेबोरेटरी एस्पेक्ट से डायग्नोसिस जो होती है वो आपकी सबसे पहले यूरिन एनालिसिस की जाती है, यानी यूरिन डिटेल रिपोर्ट आप कर सकते हैं, देन यू डू द यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी, ठीक है, ऑन व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड, और उसकी बेस्ट सेंसिटिविटी आप टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स। कॉम्प्लिकेटेड यूरिन ट्रैक इन्फेक्शंस में इन एडिशन टू यूरिन कल्चर जो है वो ब्लड कल्चर भी कभी आपको करवाना पड़ता है, या अगर पाइलोनेफ्रिक एब्सिस बना हुआ है तो पस एस्पिरेट आप करेंगे या उसका भी कल्चर करेंगे। नेफ्रोस्टमी ट्यूब से भी आप यूरिन ले सकते हैं। इन रिकरेंट यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में आपको कभी इन सब चीज़ों के अलावा ऑब्वियसली फिजिशियन हैव टू गुड फॉर अदर थिंग्स एज वेल, लाइक अल्ट्रासाउंड कराना होता है या उसको फाइंड आउट व्हाट इज द बेसिक पैथोलॉजी, प्रॉब्लम क्या है मेन, सिस्टोस्कोपी करके या आईवी पाइलोग्राम पहले होता था उससे, या फिर सीटी स्कैन से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज हाउ डू यू परफॉर्म यूरिन एनालिसिस एंड कल्चर, ठीक है। सबसे पहले जो है वो प्रॉपर कलेक्शन ऑफ यूरिन सैंपल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो मोस्ट आइडियल sample of urine is mid-stream urine specimen, that is also called clean catch urine specimen, that is recommended, ठीक है। and patient should be given written, why it is important to take proper sample, because without taking proper sample we all know कि urethra जो है वो it is colonized with the normal flora, so you will get contaminated sample, you will then you will, when you will be culturing things, you will be growing नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रॉपर सैंपल, आपका एक्चुअल जो ऑर्गेनिज्म है उसको ग्रो करने के लिए और एक्चुअल पैथोलॉजी पता करने के लिए आपको प्रॉपर कलेक्शन ऑफ सैंपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मिड स्ट्रीम यूरिन क्या होता है, व्हाट इज मिड स्ट्रीम यूरिन? इट इज सम पार्ट ऑफ द यूरिन, इनिशियल पार्ट ऑफ द यूरिन इज वेस्ट करते हैं एंड देन मिड पार्ट को कलेक्ट करते हैं और लास्ट पार्ट को भी वेस्ट करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड मिड स्ट्रीम यूरिन। और उससे पहले जो है प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द एरिया, और ये बिकॉज खासतौर पे फीमेल में इट इज़ डिफिकल्ट टू टेक क्लीन कैच सैंपल, तो ये जो है वो, एंड देन प्रॉपर ट्रांसपोर्ट विद इन 2 hours ऑफ वाइडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट तो रेफ्रिजरेट कर लें ताकि बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन हो जाए, या उसके अंदर कोई ऐसी प्रिजर्वेटिव हो यूरिन बॉटल के अंदर ताकि वो बैक्टीरिया वगैरह को फर्दर ग्रो करने को इनहिबिट कर सके। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से कैथीटर सैंपल से भी यूरिन कलेक्ट करना इज एन वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू कलेक्ट इट, क्योंकि अदरवाइज आपके पास फॉल्स जो है वो आपके पास रिजल्ट्स आ रहे होंगे एंड यू विल बी ट्रीटिंग लाइक जस्ट कॉलोनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो है सॉफ्ट एरिया जो होता है, यहाँ से जो है वो, यहाँ पे पोर्ट से यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि ये सिरिंज के जरिए जो है वो यूरिन सैंपल जो है वो ले रहे हैं, एंड you should not discontinue the whole ड्रेनेज सिस्टम, ताकि क्योंकि इससे फर्दर कंटेमिनेशन और असेंडिंग यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस जो है वो इट प्रोवाइड्स ए वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल एस्पेक्ट, लेकिन हम अभी से बात कर रहे हैं सिर्फ डायग्नोसिस ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिन एनालिसिस तो बहुत चीज़ें बताता है आपको, बहुत सारी डिजीजेस के बारे में बताता है, ठीक है, लेकिन हम अभी यहाँ पे सिर्फ पर्टिनेंट चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है यूरिन यूटीआई को डायग्नोसिस करने के लिए। उसमें ये है कि फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट हो सकते हैं, इसलिए जो है वो क्लिनिकल कंडीशन ऑफ पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले जो है वो यूरिन में फिजिकल टेस्ट किया जाता है, उसमें कलर, आपका कलर एंड टर्बिडिटी से यू कैन फाइंड आउट के whether there is a chance of UTI or not. So then second thing, important thing is chemical analysis, जिसमें there are different things जो कि specific gravity है, pH है, leukocyte esterase है, तो इसमें से नाइट्राइट है, ग्लूकोज है, then there are too many other things. So what do you think, इसमें से कौन सी important चीज़ें हैं जो कि यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन को आपको जो है वो
हेल्प करेंगी डायग्नोज करने में? एनी आइडिया? मैम ब्लड पीएच ल्यूकोसाइट एस्टरेज। ठीक है, वेरी गुड। हाँ ठीक है, एंड व्हाट अबाउट? हाँ पीएच हाँ सही है, नाइट्राइट्स ठीक है। अपीयरेंस, यस अपीयरेंस, जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों ने। ओके सो ओके, तो जाहिर सी बात है ये जो है वो ये सब चीजें जो है वो एक क्लिनिशियन जो है वो सबसे पहले इन सब चीजों को इम्पोर्टेंस देता है। लेकिन leukocyte esterase, what is leukocyte esterase? Let's talk about it. Leukocyte esterase is basically it is an enzyme that is released by the leukocytes. तो अगर वो leukocyte esterase मौजूद है तो इसका मतलब क्या है कि leukocytes जो है वो आपके यूरिन में मौजूद हैं। यूजुअली ल्यूकोसाइट्स काउंट जो होती है वो यूरिन के अंदर 0 to 5 होती है नॉर्मल, ओके। और इतने कम काउंट में ल्यूकोसाइट एस्टरेज जो है वो अनडिटेक्टेबल होता है, ठीक है। बट इफ देयर इज काउंट इज इंक्रीज बिकॉज ऑफ सम इन्फ्लेमेशन, सम इन्फेक्शन, तो इसका मतलब है कि ल्यूकोसाइट एस्टरेज भी डिटेक्ट होना शुरू हो जाएगा। सो ल्यूकोसाइट एस्टरेज को जो है वो पस सेल्स तो माइक्रोस्कोपी से देखा जाता है ना, ल्यूकोसाइट एस्टरेज को केमिकल एनालिसिस से पता कर लिया जाता है। सो इट इज एन एंजाइम दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूट्रोफिल एंड पॉजिटिव व्हेन देयर इज ए पाइयूरिया। सो इसके अनदर इम्पोर्टेंट अच्छी चीज क्या है कि इट गिव्स पॉजिटिविटी इवन इफ पस सेल्स दे आर लाइज, ठीक है ना। अगर आप माइक्रोस्कोपी में देखेंगे हो सकता है डिलेड सैंपल आपने माइक्रोस्कोपी आपको रिसीव हुई हो और पस सेल्स आपको नजर नहीं आए, लेकिन ल्यूकोसाइट एस्टरेज फिर भी आपको मिल जाएगा, ओके। बट इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट इज दैट ल्यूकोसाइट एस्टरेज जो है वो इन्फ्लेमेशन को बता रहा है, ठीक है। एंड इन्फ्लेमेशन मे बी बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, inflammation may be because of some other reasons as well, ठीक है। लाइक स्ट्राइल पायूरिया की हमने बात की थी आप लोगों से, ठीक है। तो ये सब जहन में रखें कि इट इंडिकेट्स, बट 100% इसकी स्पेसिफिसिटी नहीं है, सेंसिटिविटी अच्छी है, ठीक है। देन फॉल्स पॉजिटिव भी ल्यूकोसाइट एस्टरेज हो सकता है, लाइक वजाइनल अगर कंटामिनेशन हुई है यूरिन की, ठीक है, फीमेल में, तो उसकी वजह से भी पसल्स आ सकते हैं वजाइनाइटिस में। फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट हो सकता है अगर जो है वो कोई एंटीबायोटिक्स वजह से लिया है या कोई और रीजन से भी केमिकल जो है वो टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। Then another important thing is nitrite. What is nitrite? Nitrite is basically a normal, क्या यूरिन में मौजूद होता है? No, it is not present. Nitrite, नाइट्रेट होता है, ह्यूमन बॉडी नाइट्रेट बनाती है, लेकिन नाइट्राइट always it would be present in the urine if there is some bacteria present इन द यूरिन, जो कि नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए नाइट्राइट को एज ए इंडिकेशन लिया गया है कि अगर नाइट्राइट है तो इट मींस के बैक्टीरिया है, एंड इनडायरेक्टली इट इज इंडिकेटिंग कि सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन इज देयर, ओके। सो पॉजिटिव नाइट्राइट को इम्पोर्टेंस दी जाती है यूटीआई की डायग्नोसिस में, यूरिन एनालिसिस में। बट अनदर इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट इज दैट सम ऑफ द लाइक मोस्ट ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे इकोलाई है, क्लेप्सिला, ये सारे नाइट्राइट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रेट को नाइट्राइट पे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूटीआई कर सकते हैं, जो कि नाइट्राइट नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि अगर नाइट्राइट नेगेटिव हो गया तो यूटीआई नहीं हो सकता है। तो ये सब चीजें एज ए विद एक्सपीरियंस जो है वो आपको ये सब बातें पता चलती हैं, ओके। सो देन फॉल्स नेगेटिव नाइट्राइट भी हो सकता है, फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है। सो यू हैव टू रिमेंबर थिंग। देन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो है वो अगेन इट इज इम्पॉर्टेंट। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में जो है वो WBC जो है वो आपके नंबर ऑफ WBC जो है वो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ग्रेटर देन 20 पसल्स आते हैं तो ज्यादातर जो है वो आपकी डायग्नोसिस जो है वो इस तरफ आती है। RBCs माइट बी प्रेजेंट, माइट नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है। क्रिस्टल्स वगैरह तो दूसरी चीजों को इंडिकेट कर रहे हैं, बट अगर स्टोन से रिलेटेड यूटीआई है तो ऑब्वियसली के क्रिस्टल एंड कार्स जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकती है। देन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द यूरिन, बैक्टीरिया हो सकता है, यीस्ट हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, ठीक है। तो ये सब ऑर्गेनिज्म जो है वो आपको इसकी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ओके। लेट्स टॉक अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्राम नेगेटिव रॉड्स, ठीक है। So, so one of the like objective of this LCF is also to go through some of the basic
test for the identification, laboratory identification of gram negative rod like E. coli, Klebsiella, ठीक है. So किसी भी gram negative rod को जो हम ग्राम आइडेंटिफाई करते हैं तो देयर आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राम स्टेन मॉर्फोलॉजी क्या है. ठीक है, ग्राम स्टेन मॉर्फोलॉजी जो है वो उस पर आप बता सकते हैं कि भाई ये शॉर्ट रॉड है, लॉन्ग है, हेलिकल है, ये कॉमा शेप है, ठीक है, पॉइंटेड है, फ्यूजिफॉर्म है. सो एंड देन आप उसके बेसिस पर एक गेस वर्क कर सकते हैं. तो ग्राम स्टेन मॉर्फोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट. एंड देन उसके बाद किसी भी ऑर्गेनिज्म को फिर सैंपल को आप आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया पर, प्लेट्स पर ग्रो करते हैं. ठीक है, आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया पे जब ग्रो करेंगे तो उसकी ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स इट गिव्स यू इंडिकेशन के वो क्या ऑर्गेनिज्म है, एक सम आपको रफ आइडिया देगी. एंड देन फाइनल जो आइडेंटिफिकेशन किसी भी ग्राम नेगेटिव रॉड की होती है वो इट इज बेस्ड ऑन सम बायोकेमिकल टेस्टिंग. ठीक है, बायोकेमिकल टेस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं फैमिली एंटेरोबैक्टेरियसी से. ठीक है, फैमिली एंटेरोबैक्टेरियसी क्या है? इट्स ए ह्यूज फैमिली. इट्स वन ऑफ द मेजर फैमिली ऑफ ग्राम नेगेटिव रॉड, जो कि इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? ई. कोलाई, क्लेब्सिला, एंटेरोबैक्टर, सिट्रोबैक्टर, प्रोटियस, सैल्मोनेला, शिगेला, ये सारे काफी सारे मेंबर्स के मैंने आप लोगों को नाम बता दिए. ये सारे बिलोंग किस फैमिली से कर रहे हैं? ग्राम नेगेटिव रॉड की एंटेरोबैक्टेरियसी फैमिली. बट व्हाई दे आर कंसीडर, दे आर लाइक, आपने देखा होगा कि ये सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं. लाइक सैल्मोनेला और शिगेला तो बिल्कुल ही अलग टाइप की डिजीज करते हैं, लेकिन स्टिल दे आर कैटरिंग इन दिस फैमिली. व्हाई? द रीजन के देयर इज सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके बेसिस पर इन सबको इस फैमिली में डाला गया है. ठीक है, एंड व्हाट आर दोज कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स? वो ये है कि all of these are gram negative rods. ठीक है, straight gram negative rods, and they all grow on McConkie agar. ठीक है, और जिसमें से ये सारे के सारे जो हैं वो फर्मेंटर्स हैं ग्लूकोज के. ठीक है, इसमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो ग्लूकोज को फर्मेंट नहीं करता है, सारे फर्मेंट करते हैं. देन अमंग देम देयर सम ऑफ देम आर लैक्टोज फर्मेंटर एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटर, लेकिन ग्लूकोज को सभी फर्मेंट करते हैं. लैक्टोज को कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर ऑक्सीडेज नेगेटिव, यानी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इन सब के अंदर मौजूद नहीं होता है. तो इसलिए अगर आप ऑक्सीडेज टेस्ट करेंगे तो इन सब का नेगेटिव आएगा. मेजॉरिटी ऑफ दीज आर कैटालेज पॉजिटिव. ठीक है, एंड मोस्टली दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोटाइल. सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इन सारे मेंबर्स में मौजूद है. ठीक है, ओके. सो आप लोगों ने ये सारे टेस्ट जो है वो पढ़ लिए हैं, कैटालेज टेस्ट, ऑक्सीडेज टेस्ट, ये सब दूसरे लेक्चर्स में कवर हुए हैं क्या? नो मैम. मैम अच्छा, तो क्या मैं थोड़ा बहुत बता दूं या स्किप करूं? ये सब बता दें. अच्छा, चलिए जल्दी जल्दी बताती हूँ कि शॉर्ट ना हो जाए टाइम. ठीक है, कैटालेज टेस्ट जो है वो बेसिकली ग्राम नेगेटिव रॉड के लिए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट ये किस ऑर्गेनिज्म के लिए है? कैटालेज टेस्ट दो इम्पोर्टेंट. हाँ, बिल्कुल सही कहा. तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कैटालेज टेस्ट जो है वो बेसिकली इट इज टेस्ट दैट इज यूज्ड to find out the presence of hydrogen peroxide that is present in the bacteria, some of the bacteria. And hydrogen peroxide क्या होता है? hydrogen peroxide हम सबको पता है कि ये किलिंग के लिए यूज होता है. ठीक है, तो बैक्टीरिया भी जी फ्री रेडिकल जी उसके लिए वो करते हैं और वो यूटिलाइज करते हैं. ठीक है, तो कैटालेज एंजाइम जो जिन बैक्टीरिया के अंदर होता है वो न्यूट्रोफिल्स जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए. तो बाज बैक्टीरिया अपने प्रोटेक्शन के लिए कैटालेज एंजाइम बनाते हैं. ठीक है, कैटालेज एंजाइम क्या करता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिसइंटीग्रेट कर देता है. ठीक है, और जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव करता है न्यूट्रोफिल के अंदर. तो ये कैटालेज टेस्ट जो होता है ये बेसिकली लेबोरेटरी में आइडेंटिफिकेशन, बैक्टीरिया तो अपने लिए यूज कर रहे होते हैं इसको, लेकिन हम इसको यूज करते हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए लैब में. ठीक है, तो दो मेन फैमिली है, एक स्टेफिलोकोकल फैमिली एंड स्ट्रेप्टोकोकस
फैमिली। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कैटालेस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटालेस टेस्ट पॉजिटिव जो होते हैं सारे स्टेफिलोकोकाई इंक्लूडिंग स्टेफ ऑरियस, दूसरे कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफिलोकोकाई, स्टेफ एपिडर्मिडिस, ये सारे जो है वो कैटालेस पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और कैटालेस नेगेटिव सारे स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं, यानी स्ट्रेप्टोकोकाई कौन कौन से हो गए, चाहे वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस हो या गैलेक्सी हो, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी हो, विरिडांस हो, सारे स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो कैटालेस टेस्ट नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक टेस्ट स्लाइड पर करके दिखाया गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो ये इन्होंने डाला है 2 जगह पर, और एक जगह पर जो है वो स्टेफिलोकोकस की जो है वो कॉलोनी उठा करके कैटालेस ड्रॉप पर डाला गया है, ठीक है। तो ये देखा है कि ये कितना बबल्स बना रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैटालेस एंजाइम जो है वो कर रहा है, डिस्पोज कर रहा है, तो जिसकी वजह से एयर बबल्स बन रहे हैं, ठीक है। और ये कैटालेस नेगेटिव किसका होगा, स्ट्रेप्टोकोकेसी का, यानी अगर ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस होता तो वो कैटालेस टेस्ट नेगेटिव देगा, क्योंकि उसमें ये एंजाइम होता ही नहीं है मौजूद। इज दिस क्लियर आप लोगों को, ठीक है। ग्राम नेगेटिव रॉड में कैटालेस की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन कभी कभी होती है हायर लेवल पर। आप लोगों को बस ग्राम पॉजिटिव के लिहाज से कैटालेस की इंपॉर्टेंस बहुत अच्छी पता होनी चाहिए। ऑक्सीडेज टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीडेज टेस्ट बेसिकली साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, कुछ बैक्टीरिया में मौजूद होता है, कुछ बैक्टीरिया में नहीं मौजूद होता है, ठीक है। तो जितने ऑक्सीडाइजर्स होते हैं लाइक सूडोमोनास वगैरह के जितने फैमिली से बिलोंग करते हैं, दीज आर ऑल साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन एंटेरोबैक्टेरियसी हमने अभी बात की थी कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि उसके अंदर वो ऑक्सीडाइजर नहीं है, वो क्या है, फर्मेंटर है, ठीक है। तो ऑक्सीडेज टेस्ट लैब में आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या ये एंटेरोबैक्टेरियसी है या नॉन एंटेरोबैक्टेरियसी फैमिली में से कोई और बैक्टीरिया है, इसके लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। और ये आप यहाँ पर इसमें क्या करते हैं कि कॉलोनी उठा करके, इसमें भी एक रिएजेंट होता है, उसके ऊपर जो है वो कॉलोनी के ऊपर वो रिएजेंट सॉब में लेकर के या प्लेट पे लेकर टिश्यू कह रही हूँ, फिल्टर पेपर पे लेकर के वो डाला जाता है रिएजेंट, और फिर ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी को उस पर लगाया जाता है। तो अगर ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव होगा, यानी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम उस बैक्टीरिया में पॉजिटिव होगा, तो कलर ऑफ द रिएजेंट जो है वो इट विल चेंज इनटू डार्क पर्पल इन कलर, ठीक है। वो इंडिकेट क्या कर रहा है कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है। यानी सूडोमोनास जो है वो ये इस कलर का दे देगा, लेकिन एंटेरोबैक्टेरियसी में कॉलोनी का कोई कलर चेंज नहीं होगा, वो पेल कलर की कॉलोनी रहेगी या वाइट ही रहेगा पेपर आपका, ठीक है। इज दिस फाइन? देन ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट, ये कुछ टेस्ट है, टेस्ट ट्यूब देख रहे होंगे आप लोग, इसमें जो है वो कुछ बैक्टीरिया के रिएक्शंस जो है वो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया के दिखाए गए हैं। सो आई होप कि आप लोगों ने ये पढ़ा है ट्रिपल शुगर आयरन। सो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ ट्रिपल शुगर आयरन। क्यों कहते हैं इसको? 3 तरह की शुगर इसके अंदर होती है, इस मीडिया के अंदर, ओके। तो ये बेसिकली ये जो मीडिया होता है ये आइडेंटिफाई करता है कि आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो क्या वो फर्मेंटर है, तो क्या वो लैक्टोज फर्मेंटर है या नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है या नॉन फर्मेंटर है। तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए जो है वो ये मीडिया जो है वो यूज होता है। लेकिन आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दिस मीडिया। आई थिंक आप लोग इसको जाकर पढ़ ले, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मीडिया जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर फिर आप जो है वो डिफरेंट ग्राम नेगेटिव रॉड जो होते हैं एंटेरोबैक्टेरियसी के, उनको आप डिवाइड करते हैं, ठीक है। एसिड ओवर एसिड रिएक्शन है या एसिड ओवर अल्कलाइन है या आपका अल्कलाइन ओवर अल्कलाइन, ये सब पढ़े हैं आप लोग रिएक्शन ईयर 3 वगैरह में पढ़े होंगे ना माइक्रोबायोलॉजी में, तो जरा सा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। सो इसके बेसिस पर आप जो है वो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। मोटिलिटी टेस्ट किया जाता है, इसमें सेमी सॉलिड मीडिया लिया जाता है, उसके अंदर बैक्टीरिया के
कॉलोनी को स्ट्रेट वायर से जो है वो पूरा देखा होगा आप लोगों ने, ये स्ट्रीक किया हुआ है, ठीक है, और इंक्यूबेट कर दिया जाता है, दूसरे दिन सुबह में देखा जाता है। अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो आपको ये हेजिनेस पूरे मीडिया में मिलेगी, या ये पूरा बाद दफा हाइड्रोजन सल्फाइड भी डाल दिया जाता है, तो बैक्टीरिया अगर मोटाइल है तो पूरा मीडिया भी ब्लैक हो जाता है। अगर नॉन मोटाइल है तो आपको देखिए कोई आपके हेजिनेस नजर नहीं आ रही है सराउंडिंग स्ट्रीक पर, सो दैट इज कॉल्ड मोटिलिटी टेस्ट, ठीक है। इंडोल टेस्ट अनदर टेस्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ई कोलाई आइडेंटिफिकेशन परस्पेक्टिव। इंडोल जो है कुछ बैक्टीरिया जो है वो ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म करते हैं, तो वो जो है वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, इंडोल को आइडेंटिफाई करके उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको यूटिलाइज किया जाता है। ये जो पिंक कलर की रिंग बनी हुई है ये पॉजिटिव ट्यूब में, सो दैट इज इंडोल रिंग, ठीक है। और ई कोलाई ये टेस्ट पॉजिटिव देता है इंडोल टेस्ट, ठीक है, जबकि क्लेप्सिला वगैरह इंडोल टेस्ट नेगेटिव देते हैं। यूरिया टेस्ट 5 दफा किया जाता है, यूरिएज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो होते हैं यूरिया टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, यूरिएज नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो जाहिर से पता है नेगेटिव टेस्ट देंगे। सो एंट्रोबैक्टेरियसी के जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है सारे, उनके बेसिस पर ये सारे टेस्ट के बेसिस पर इन सबको आइडेंटिफाई किया जाता है। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल, ना ही आप लोग को इतना याद रखने की जरूरत है। दिस इज चार्ट इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि किस तरह से बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन इन सारे टेस्ट के बेसिस पर की जाती है, ठीक है। तो ई कोलाई जो है वो इंडोल पॉजिटिव होगा, मोटाइल होगा, ये सब आप लोग पढ़ते हैं ना, ठीक है। और उसका टीएसआई में जो है वो एसिड ओवर एसिड देगा, ठीक है। तो ये वाली चीजें इस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये सारे टेस्ट में पॉजिटिव, ये जरूर ई कोलाई होगा, ठीक है। ये ऐसा दे रहा है रिएक्शन तो ये ई कोलाई तो हो नहीं सकता, ये कोई और कैटेगरी होगा। तो दैट्स हाउ यू गो थ्रू। ई कोलाई जो है वो डिफरेंट टाइप्स के ई कोलाई आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो यहाँ से रिलेशन तो नहीं बन रही है यूटीआई से, लेकिन जस्ट टू कवर ई कोलाई के डिफरेंट, इन एडिशन टू यूरोपैथोजेनिक ई कोलाई, एंटेरो एग्रेसिव ई कोलाई भी होते हैं, एंटेरो हेमोरेजिक ई कोलाई, एंटेरो इन्वेजिव ई कोलाई, एंटेरो पैथोजेनिक ई कोलाई, एंटेरो टॉक्सिजेनिक ई कोलाई, ठीक है। और ज्यादातर जो है वो डायरिया करते हैं ये सारे ऑर्गेनिज्म, सिर्फ यूरोपैथोजेनिक ई कोलाई जो यूटीआई करते हैं। इसके अलावा ई कोलाई और कौन कौन से इन्फेक्शन कर सकते हैं, बैक्टीरिया कर सकते हैं, और बहुत सारे जी बिल्कुल बहुत सारे वुंड इन्फेक्शन भी, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन भी कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ई कोलाई जो है वो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ एंट्रोबैक्टेरियसी फैमिली है, जो कि काफी कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कर सकता है। ओके, ट्रीटमेंट यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन एवरीवन नोज के अनकॉम्प्लिकेटेड में जो है यूजुअली जो शॉर्ट कोर्स ओरल एंटीबायोटिक का दिया जाता है, कॉम्प्लिकेटेड में ज्यादातर जो है आईवी ट्रीटमेंट दी जाती है इनिशियली, और फिर जो है उसके बाद फिर फॉलो अप जो है वो आपको ओरल पे रखा जा सकता है, कल्चर्स करवाए जाते हैं। खासतौर पे कॉम्प्लिकेटेड यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन कैथेटराइज अगर पेशेंट्स हैं तो उनको जो है वो कैथेटर रिमूवल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, ठीक है। अगर आप रिमूव करेंगे तभी ज्यादा बेहतरी आने की चांसेस हो सकते हैं। प्रिवेंशन में यूटीआई की अभी तक कोई ऐसी वैक्सीन तो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, बट गुड हाइजीन हो अगर, या समटाइम जो है वो प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर्स अगर होते हैं तो ऑब्वियसली प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स भी काफी पेशेंट्स को देनी पड़ती है। वॉइस नॉट क्लियर लिखा हुआ आ रहा है, ओके ओके। नोजोकोमियल यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, थोड़ा सा मैं बताऊंगी इसके बारे में बट ब्रीफली। इट इज जैसे हमने शुरू में बताया था कि अगर हम नोजोकोमियल इन्फेक्शंस को क्लासिफाई करते हैं तो यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन जो है नोजोकोमियल या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस में सबसे कॉमनेस्ट है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। क्यों? बिकॉज 25% ऑफ ऑल इन पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल्स आर यूजुअली कैथेटराइज, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है अगर देखा जाए कि कैथेटराइजेशन अगर हुई हुई है तो 25% जो है वो उसमें 7 डेज से ज्यादा अगर कैथेटराइजेशन होती है तो इट इज वेरी हाई रिस्क टू डेवलप यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। तो कैथेटर का पड़ा रहना ही जो है वो सबसे बड़ा रिस्क है, इसलिए जो है वो 25% ऑफ पेशेंट्स में देखा गया 7 डेज से अगर ज्यादा कैथेटर पड़ा हुआ है तो जो है वो उनका चांसेस हो जाते हैं। डेली रिस्क जो है वो 5% बढ़ता चला जाता है,
तो नोज़ोकोमियल यूटीआई जो है वो किन ऑर्गेनिज्म से होता है और कैसे होता है? सो बेसिकली ये भी यूजुअली जो है वो पेशेंट के अपने फ्लोरा से भी हो सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग कैथेटराइजेशन इंट्रोड्यूस हो गए और देन they make the biofilm and then they proliferate over there and then they cause urinary tract infection, catheter related infection. लेकिन exogenous organisms भी आ सकते हैं. exogenous infection organism कहाँ से आते हैं? ये पेशेंट के अपने फ्लोरा नहीं है, ये हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट के ऑर्गेनिजम्स हैं. एंड व्हाट आर हाउ दे आर रीचिंग टू द पेशेंट ब्लैडर एंड अदर पार्ट ऑफ द यूरिन ट्रैक्ट वाया कैथेटर या फिर किसी सिस्टोस्कोप या किसी और ड्रेनेज के वक्त इंट्रोड्यूस हो गया, कंटेमिनेटेड हैंड्स ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर्स उनकी वजह से इंट्रोड्यूस हो गया. सो नोज़ोकोमल यूटीआई इज वेरी लाइक इम्पॉर्टेंट. सो पोटेंशियल साइड जो वो आपके अगर ब्रेकेज करेंगे आप क्लोज ड्रेनेज सिस्टम का, तो जो है वो आपके यहाँ से भी आपके एक्स्ट्रा ल्यूमिनल भी इंट्रोडक्शन हो सकती है बैक्टीरिया की. और without which antibiotics, what does it mean? Okay, sorry, someone was asking question, which antibiotic? I think पुराना क्वेश्चन है ये. Okay, we will take in the last. Okay, ठीक है. ओके, तो जो इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया होती है ना नोज़ोकोमियल यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, कौन कौन साइड से हो सकती है? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल भी हो सकती है, यानी आउटसाइड द ल्यूमन जो है ना वो स्किन से कैपिलरी एक्शन से और उससे जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रैक करके ना वो यूरिथ्रा में साइड से एंटर होकर के ऊपर असेंडिंग इन्फेक्शन कर सकता है. और इंट्रा ल्यूमिनल भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि ड्रेनेज सिस्टम जो है वो भी अंदर से हो सकता है एक आध बैक्टीरिया उसके अंदर कहीं से आ गया हो और वो अंदर प्रोलिफरेट होकर वो भी असेंडिंग जो है वो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो कर सकता है. ओके, दिस इज जस्ट टू शो यू एन आउटब्रेक जो कि पब्लिश्ड हुई थी, किसी काफी पुरानी आउटब्रेक है. इसमें ये दिखाया गया है कि एक इंडेक्स केस से जो है वो थ्रो इम्प्रॉपर जो है वो आपके जो है वो एक इंडेक्स केस को जो है वो क्लेप्सिला नमूनी से जो है वो एक स्ट्रेन से इन्फेक्शन हुआ था और इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस उनकी कॉम्प्रोमाइज थी. तो पूरे वार्ड के जो है वो सारे जो है वो पेशेंट्स को जो है वो स्ट्रेन जो है स्प्रेड होकर के सबको जो है वो कॉटी जो है वो इसी स्ट्रेन से हो गया था. तो दैट शोज के कितना इम्पोर्टेंट है जो है वो इन्फेक्शन prevention and control. I will talk later in my later lecture. So prevention of UTI कॉटी कैसे कर सकते हैं हम? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अवॉइड अननेसेसरी कैथेटराइजेशन. आप सबसे पहले तो ये करें, अवॉइड करें. अगर आप हो सकते हैं कर सकते हैं अवॉइड, बिल्कुल करें. यू शुड फाइंड आउट एप्रोप्रिएट इंडिकेशन. पहले जमाने में होता था हर किसी को कैथेटर लग जाता, यूरिनरी कैथेटर, ठीक है ना, ऐसा होता था. लेकिन अब लोगों को ओरिएंटेशन आ गई है, तो नाउ देयर इज सम स्पेसिफिक इंडिकेशन, जैसे कि अगर ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है या इनकॉन्टिनेंस है, सैक्रल वुंड है या यूरिनरी आउटपुट मॉनिटरिंग हो रही है, या आपके सर्जरी जस्ट आफ्टर एंड बिफोर सर्जरी आप करना चाह रहे हैं, ड्यूरिंग द सर्जरी तब आप कैथेटर लगाते हैं. अगर आपके पास कोई और ऑल्टरनेटिव है, यू गो फॉर दैट ऑल्टरनेटिव. लाइक कॉन्डोम कैथेटर यूज कर लें, आप पैम्पर्स यूज कर लें, ठीक है. आप सुप्रा प्यूबिक इंसर्शन कर सकते हैं कैथेटर, क्योंकि यू नो कि अगर आपने लॉन्ग टर्म इंडोलिक कैथेटर यूज किया तो सम हाउ जो है वो देयर इज हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन. अगर आपने सम हाउ बिकॉज ऑफ इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन अगर आपने डाला भी है तो डेली रिव्यू करना चाहिए उसका कि आपको नीड है पेशेंट को कि नहीं है. Education of the healthcare worker, how to insert it, how to take aseptic precautions, क्या क्या maintenance कैसे करना चाहिए, close and dependent drainage system. Okay, so this is the like how to take care of catheter. So this was the final slide. Sorry for like my voice is not clear, maybe because of my जो है वो मेरा जो sore throat हो रहा है इसकी वजह से. So you can ask one or two questions I can take.
So, मैम यूटीआई ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस की जरा बताएं कि उसकी डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। यूरिनरी सैंपल इसकी ग्राम से नहीं करेंगे, कल्चर करेंगे, इसका थोड़ा बताइए। और क्लिनिकली कैसे वो डिफरेंट होगा दूसरे बैक्टीरियल यूटीआई से या फंगल से जो। और कौन सा यूटीआई बोल रहे हैं आप? ड्यू टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है वो इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, उसमें आपका पेशेंट जो है वो सिंपल यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन की तरह प्रेजेंट नहीं करेगा। एक्यूट जैसे यूटीआई के जैसे सिम्टम्स होते हैं ये सब नहीं होता है। ठीक है, उसमें जो है वो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है वो आपका पेशेंट जो है वो आपका जो है वो बहुत अगर प्रेजेंट करेगा वेट लॉस वगैरह इस तरह की लो ग्रेड फीवर वगैरह जैसे उसके टीबी के जैसे सिम्टम्स होंगे। और ब्लड यूरिन में ब्लड यूजुअली देखा जाता है उसमें होता है। ठीक है, तो जब आपको ये हो विदाउट एनी मतलब आपके पास सेल्स ऑफ ब्लड है एंड देयर इज नो कन्वेंशनल बैक्टीरिया जो कि ग्रो हो रहे हैं और आप यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट कि आपको उसको माइकोबैक्टीरियम वी आर एंडेमिक एरिया फॉर टीबी। ठीक है, तो हमें इन सब चीज़ों को ज़रूर इसको डायग्नोसिस को जो है वो रूल आउट ज़रूर करना चाहिए। आपके पास कन्वेंशनल कोई कल्चर में कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हो रहा है, आप एंटीबायोटिक भी रूटीन की देकर थक गए, लेकिन आपका पेशेंट जो है वो हर कुछ दिन के बाद जो है वो सिम्टम्स के यही ब्लड आ रहा है यूरिन में या आपके जो है वो लोअर फ्लैंक पेन वगैरह इस तरह के हो रहा है उसको, और वेट लॉस हो रहा है, कोई इस तरह के फीवर वगैरह लो ग्रेड रह रहा है, ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो आपके टीबी यानी क्रॉनिक इन्फेक्शन के हैं आपके। ठीक है, तो फिर आपको टीबी की डायग्नोसिस के ऊपर जाना पड़े। टीबी का टोटली डिफरेंट उसका जो है वो आपका जो है वो कल्चर उसका होता है, इसका रूटीन कल्चर में उसके आपके आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती है। ठीक है, तो आइजुलेज और कैटालेज का थोड़ा सा डिफरेंस बता दें। देखिए, जब आप ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना, ठीक है, तो ये दो जो मैंने आपको टेस्ट लेबोरेटरी के बताए ये सारे दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के दो जो मेन फैमिलीज हैं उनकी डिफ्रेंसिएशन के लिए। ठीक है, ये आप याद रख लीजिए। ग्राम नेगेटिव रॉड में कैटेलेज एंड कोएगुलेज का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, ग्राम पॉजिटिव में है। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर सबके। ठीक है, अब वो कौन सी दो फैमिली हैं? स्टेफिलोकोकस फैमिली एंड स्ट्रेप्टोकोकेसी फैमिली। ये दो फैमिली को आप के अंदर के जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आप इन दो टेस्ट से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला स्टेप होता है इन दोनों टेस्ट से पहले ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन में आपको ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई का क्लस्टर में नजर आ रहे हैं, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो स्टेफिलोकोकेसी ग्रुप लग रहा है। ठीक है, अगर चेन में है या डिप्लो है तो क्या इंडिकेट कर रहा है? स्ट्रेप्टोकोकेसी फैमिली। ठीक है, ये तो आपने ग्राम स्टेन पे कर दिया क्योंकि दोनों ही ग्राम पॉजिटिव है, दोनों ही कोकाएं हैं, पर्पल कलर के दोनों ही, लेकिन अरेंजमेंट इनकी डिफरेंट हो गई ग्राम स्टेन में। अब आ जाए बायोकेमिकल टेस्ट में। बायोकेमिकल टेस्ट में जब आपने टेस्ट कल्चर मीडिया पर यानी ब्लड डैगर पर आपने ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया तो उसके बाद कॉलोनी के ऊपर ये दो टेस्ट परफॉर्म होते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला टेस्ट जो होता है वो कैटेलेज टेस्ट होता है। कैटेलेज टेस्ट अभी मैंने बता दिया कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो के मदद से किया जाता है। कैटेलेज एंजाइम उस बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो स्टेफिलोकोकेसी फैमिली के जितने ऑर्गेनिजम्स हैं यानी स्टेफिलोकोकस ऑरियस हो चाहे वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस के अलावा दूसरे स्टेफिलोकोकाई हो, बस वो फैमिली स्टेफिलोकोकेसी होनी चाहिए, वो सारे कैटेलेज पॉजिटिव हैं। इज दिस क्लियर? जबकि स्ट्रेप्टोकोकेसी वाले जितने ग्रुप है पूरा, चाहे वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस हो, एगेलेक्सी हो, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी हो, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडांस हो, कोई और किस्म के स्ट्रेप्टोकोकाई हो, एंटेरोकोकस हो, ये सारे जो होंगे वो कैटेलेज नेगेटिव होंगे। इज दिस क्लियर? ये तो आपने पहले इनको फैमिली को डिवाइड कर दिया। फिर जो कोएगुलेज टेस्ट जो होता है ना वो हम स्टेफिलोकोकस के अंदर दो ग्रुप में को डिवाइड करने के लिए करते हैं।
हमें ये पता करना है कि अब स्टेफिलोकोकस तो पता चल गया कैटलेज टेस्ट से, लेकिन क्या ये स्टेफ ऑरियस है कि नहीं है, क्योंकि हमारी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म अभी क्या है उसमें, उस फैमिली स्टेफ ऑरियस। तो स्टेफ ऑरियस की इतनी इंपॉर्टेंस है कि दुनिया भर में एक टेस्ट, ये कोएगुलेज टेस्ट को आइडेंटिफाई किया गया और उसके बेसिस पर स्टेफिलोकोकेसी फैमिली की जर्म्स को 2 ग्रुप में कर किया जाता है, कोएगुलेज पॉजिटिव, कोएगुलेज नेगेटिव। कोएगुलेज पॉजिटिव अगर आ गया तो आपका आंख बंद करके आप उसको कह देंगे स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। अगर कोएगुलेज नेगेटिव टेस्ट आ रहा है, ठीक है, तो आप कह दें कि स्टेफ ऑरियस नहीं है, ये बाकी जो जितने स्टेफिलोकोकस फैमिली के जो स्पीशीज हैं, जिसमें एपिडर्मिडिस भी चाहे हो सकती है, ये सेप्रोफिटिकस हो सकता है और 10,000 दूसरी स्पीशीज हैं, वो हो जाएंगी, लेकिन स्टेफ ऑरियस नहीं होगा कोएगुलेज अगर नेगेटिव है तो। इज दिस ओके? यस मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो कोएगुलेज टेस्ट जो है वो उसका स्ट्रेप्टोकोकेसी फैमिली में कोई रोल नहीं है। कैटेलेज तक आप ये दोनों फैमिली को डिवाइड कर देते हैं और फिर स्टेफिलोकोकस ग्रुप को फर्दर डिवाइड करने के लिए आप कोएगुलेज टेस्ट करते हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है, और अब Yes. अब आप लोग मुझे ये बताएं, अब जब हमने ये बहस छेड़ी दी है, ये बताइए कि स्ट्रेप्टोकोकेसी को कैसे फर्दर डिवाइड करते हैं। हमने स्टेफिलोकोकसी को तो स्टेफ ऑरियस और नॉन ऑरियस में कोएगुलेज टेस्ट से कर दिया। स्ट्रेप्टोकोकस फैमिली के जो दूसरे ऑर्गेनिज्म, मैंने इतने सारे नाम लिए, उनको हम कैसे करते हैं आइडेंटिफाई? एनी आइडिया? कैटलेज नेगेटिव, वो तो हो गया ना, वो तो पता चल गया कि उस ग्रुप में उनके दरमियान आपको कैसे पता चलेगा कि वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनीज है या स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी है? ये कुछ आइडिया है कि ऑप्टोकिन रिस्क टेस्ट? क्या? हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, चले तो ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकेसी के जब हम इस तरफ आगे कैटलेज नेगेटिव करके ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो स्ट्रेप्टोकोकेसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो हम 2 चीज देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं? ब्लड एगर पर टाइप ऑफ हिमोलिसिस, क्या वो बीटा हिमोलिटिक है, अल्फा हिमोलिटिक है या गामा हिमोलिटिक है। एक तो ये टाइप ऑफ हिमोलिसिस देखते हैं, और इसके अलावा फिर हम एक और, अगर हमें स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी जैसा लग रहा है, यानी उसकी मॉर्फोलॉजी वैसी लग रही है, तो हम ऑप्टिजिन टेस्ट लगा करके उसको आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी को। लेकिन अगर बीटा हिमोलिसिस अगर नजर आ रही है तो हम लैंसफील्ड ग्रुपिंग करके हम डिफरेंट टाइप के स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनीज